Hello, my dear friends. How are you? I hope you are well and you are doing very good in your life. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लाइट. क्लास 10th. क्लास 10th. Chapter light, reflection and refraction is very important topic for CBSE board exams and other state exams also. ओके. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है. कृपया करके इसे ध्यान से पढ़िएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट स्टार्ट. व्हाट इज़ लाइट? व्हाट इज़ लाइट? सो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हाट? द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. क्या वर्क है इसका? जो हमें क्या करती है? इनेबल सी ऑब्जेक्ट्स. ओके. Light is a form of energy. Okay. Properties of light. First, it travels in straight lines. Okay. Second, an electromagnetic wave so does not require any medium to travels. Okay. मतलब इसका मतलब है कि ये सीधी रेखा में गमन करता है लाइट, और इसके लिए कोई मीडियम की नीड नहीं होती है. ये वैक्यूम में भी मूव कर सकता है. थर्ड, light has dual nature. Light has dual nature as well as particles, right? Third, light casts shadow. Light क्या बनाता है? Shadow बनाता है. Okay. Speed of light is maximum in vacuum. वैक्यूम में बेटा स्पीड क्या होती है? लाइट की सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है. इट वैल्यू इज़ 3 × 10. इट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? 10⁸ मीटर पर सेकेंड. When light fall on a surface, the following happens: या रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन. अगर किसी भी प्लेन पे पड़ता है तो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या रिफ्लेक्स हो जाएगा, या रिफ्लेक्शन हो जाएगा, या फिर ऑब्जर्व कर लेगा, राइट? यही तीनों चीज़ों में से कुछ हो सकता है. ठीक है. तो ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा. बेसिक चीज़ है. लाइट क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, नो मीडियम रिक्वायर्ड, हैज डुअल नेचर, लाइट का शेडो, एंड मैक्सिमम इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट इन मैक्सिमम इन वैक्यूम. ओके. नेक्स्ट आई नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So, reflection of light. You know that reflection of light? Definition: bouncing back of light when it strike at the shiny polished surface. Law of reflection means, you know that bouncing back of light when it strike a shiny polished surface. You see then this figure, light comes on the surface and and bounce backs after strike. Okay, so this ray called incident ray, and after reflection it is reflected ray. Okay. An incident of angle of incident and angle of reflection. Yeah, this is normal. Okay, so here is I or here is R. So I is the angle of incident, or angle of reflection is R. Okay. So this is the reflection. Okay. What's conditions? So there are two main conditions. Means law of reflection. First, angle of incident equal to angle of reflection must be equal. Second, incident ray, reflected ray and normal lie on the same plane. You know that. You see the here incident ray, reflected ray and normal on the same plane, and so same plane. So okay, on the same line. Okay, same plane. Okay, so two conditions must required: angle of incident and angle of reflection are equal, and incident, reflected and normal lie on the same plane. Okay. There are two type of reflection, you know, regular reflection and diffused reflection. Regular, from a smooth surface, so see the smooth surface, right? Painted mirror, and comes when surface is irregular, so you know that comes see like
right? So this is irregular reflection. So regular reflection from a smooth surface like mirror. Second, diffusion is from a rough surface. Okay, this is the rough surface. So this reflection is diffused reflection. Okay, there are two type of reflection: regular reflection and diffused reflection. Okay, next, you know, feature. So some features, you know, that real image and imaginary virtual image. Okay, so features: formation, formed when light ray actually meet, so actually meet, so make real, right? So you know that this is the concave mirror. Okay, and here the object light go back from focus, and another ray go back. So here you know that this is the real. So you know, form light ray actually meet, here's actually meet light on this point, so make real image. Okay, and here you know said this is convex mirror, and here's, you know, light bounce back, right? And Saraj August. So you know that, so image like is there, look here. So this is इन वर्चुअल इमेज, राइट? तो यहाँ कौन सी इमेज बनेगी बेटा? वर्चुअल इमेज, राइट? ये वर्चुअल इमेज होगी, राइट? इस टाइप से हम से कह सकते हैं जहाँ पर हमें एक्चुअल में वीडियो मिलती हुई दिखाई देती हैं वहाँ रियल इमेज होता है, और जहाँ पर ऐसे हमें डॉट डॉट करके दिखाना पड़े यानी बाउंस बैक हो जाएगी, यहाँ तो आएगी ए लाइन से बाउंस बैक हो जाएगी बेटा। सेकंड थिंग क्या है, सॉरी, यहाँ से गो बैक हो जाएगा और अपन को यहाँ पर मीट का होता हुआ शो होगा। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये थोड़ा सा मैंने अभी प्रॉपर नहीं बनाया है, आगे बताऊँगा। इसका मतलब ये इधर से है ना, रिश्ता इससे पेंटेड हो तो इस जो रे आएगी वो इधर से दिखेगी और एक रे होगी जो ऐसे हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो भी बनेगा बेटा ये वर्चुअल बनेगा, इसे बोलेंगे जो हमारे रियल में। अगर हम देखें जैसे हमें सब सपने आते हैं ना, तो सपने रात में होते हैं, वो रियल नहीं होते हैं, वो वर्चुअल होते हैं सपने हमारे। तो लाइक सपने, सपने जैसा होता है उसे वर्चुअल बोलते हैं। यानी फॉर्म्ड व्हेन लाइट से अपीयर टू मीट, अपीयर ए वर्ड से याद रखना, अपीयर, अपीयर होता हुआ दिखाई देगा तो वहाँ कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। और रियली एक्चुअली मीट होगा तो वहाँ पर कैसी होगी? रियल। जहाँ मिलेंगे तो रियल इमेज होगी। ये बेटा ऑलवेज इन्वर्टेड होगी, मोस्ट ऑफ द केस में ऑलवेज इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज कैसे बनेंगे? इस टाइप से। ऑलवेज इरेक्ट यानी अपराइट, इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है इधर मिरर है तो इमेज भी कैसे बनेगी आपकी? इस टाइप से। तो ये बेटा कैसी होगी? इरेक्ट होगी, राइट? Can be captured on screen, cannot captured on the screen, right? Concave mirror and convex lens under certain conditions, ये फैलो करता है रियल इमेज का। और प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, राइट? सो ये क्या बनाते हैं बेटा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल और रियल इमेज आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो ऑन इसको हम बेटा रियल इमेज को क्या स्क्रीन पर देख सकते हैं, शो कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं यहाँ पर ऑन अ स्क्रीन, ऑन द सिनेमा स्क्रीन। और वर्चुअल तो सपने में आएगा तो हम इसे रियल में तो नहीं ढूंढ पाएंगे, बट इमेज सीन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में हम इसको देख सकते हैं। हम अपनी फ़ोटो देखते हैं, है ना? ठीक है। रियल इमेज क्या होती है? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोजेक्टेड एंड फॉर्म ऑन द अपोजिट। एंड वर्चुअल क्या होता है? फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली बी सीन। हम प्रोजेक्टेड नहीं कर सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? सीन कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो वर्चुअल और रियल इमेज में आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते बेटा, इम्पॉर्टेंट है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है बेटा? एक प्लेन मिरर एक्स वाई इज अ प्लेन मिरर एंड हेयर्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमसे इसको यहाँ से आया
ये बाउंस बैक होके हो गया, तो हमने इधर से पेंटेड कर दिया इस टाइप से, राइट। पेंटेड तो बेटा यहाँ से एक रे जाती है और यहाँ पर हमें पॉइंटेड दिखाई देती है, और ये यहाँ से करके यहाँ चली जाए, बाउंस बैक हो जाएगा बेटा। यहाँ से हो गई, ये इधर से चलेगा, ठीक है, बेंड होके। इंसिडेंट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन एंड गोस दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पर हमें प्रॉपर, तो हम इसको मिला देंगे बेटा, इधर को मिला देंगे, तो यहाँ पर हमें एक वर्चुअल इमेज दिखती हुई दिखाई देगी। तो ए बी इज अ ऑब्जेक्ट, ए बी इज अ ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज अ इमेज। ओके, तो ये कौन सा इमेज हुआ? प्लेन मिरर। प्लेन कैसा होता है बेटा? एक साइड पॉलिश्ड होता है और सीधा होता है, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। कैरेक्टर क्या होंगे इसके, क्या इसकी विशेषता होंगी? तो देखिए, ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। देखो, वर्चुअल सपने में आया हमारे, ठीक है। इरेक्ट है यानी सीधा है, सीधा हो गया है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने साइज की इमेज है उतनी साइज का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इमेज दोनों की साइज क्या है? सेम होगी बेटा। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर ये हमारी इमेज बनेगी, राइट। तो डिस्टेंस क्या होगी? दोनों की इक्वल होगी, राइट। लिटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन, राइट। ये स्पेशल केस होता है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर देखते हैं। तो मिरर हमने दो टाइप से पढ़े। एक तो प्लेन मिरर हो गया हमारा, क्या हो गया? प्लेन हो गया। और एक होगा हमारा स्फेरिकल। क्या हो गया? स्फेरिकल। तो दो स्फेरिकल को अगेन हम टू क्लासीफाई कर सकते हैं। ये क्या है? हमारे सारे मिरर हैं, राइट, मिरर्स। तो मिरर्स को हमने प्लेन बना, मिरर और स्फेरिकल में दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव और कॉनवेक्स। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर, दो प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो, अगर मैं देखूं, है ना, तो आप देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू, आपको फिगर बताता हूँ। देखिए, ये कॉन्वेक्स, एक सर्कल लिया, सर्कल के इधर अंदर पार्ट को हमने क्या कर दिया? पेंटेड कर दिया। तो बाहर से जो होगा वो होगा कॉन्वेक्स, जो उठा हुआ होगा। और कॉनकेव यानी ये सर्कल है, तो सर्कल के अंदर जो होगा बेटा, इधर पेंटेड होगा, ये जो हमारा कहलाएगा कॉनकेव मिरर। अंदर से आप देखोगे तो गुफा होती, गुफा होती कि नहीं अंदर को ऐसी, तो गुफा है। गुफा के अंदर हम क्या होती है? वो केव होती है। क्या बोलते हैं? हम केव बोलते हैं। ऐसे याद करने के लिए आप ऐसे निमोनिक्स बना सकते हैं कि केव होती है, तो केव मतलब कौन केव, तो कौन केव, और बचा क्या? ये तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, राइट। अब इसमें इसके क्या क्या बेटा होंगे? तो देखो, आपको दिख रहा होगा सेंटर, इस सर्कल का सेंटर, वो सेंटर, यही सेंटर क्या होगा? इसका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इसकी तो सेंटर से इसकी पेरीमीटर की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? रेडियस। और रेडियस का हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? फोकस लेंथ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फोकस। तो यहाँ पर क्या क्या नाम आए हैं? एफ इज अ फोकल पॉइंट, एफ इज अ फोकल पॉइंट, और एफ, स्मॉल एफ इज अ फोकल लेंथ, इज अ फोकल लेंथ। देखिए, एफ इज अ फोकल, फोकल पॉइंट, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस फोकल, छोटा एफ, एफ यानी स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी होगा पोल, पी क्या होगा? हमारा पोल। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ओके, तो दो प्रकार के मिरर होते हैं। आई होप कि दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब आप देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो देखिए, कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड। रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसे होगी? इनवर्ड, ऐसे, ऐसे इनवर्ड होगा, ठीक है। और कन्वर्जिंग मिरर, क्या होगा? कन्वर्जिंग मिरर, ऐसे यहाँ से तुम्हें देखेगा लाइट आएगी बेटा, कन्वर्ज होके इधर चली जाएगी, राइट। ऐसे इधर से लाइट जाएगी और कन्वर्ज होके यहाँ चली जाएगी, तो ये कन्वर्ज हो रही है, किसी एक पॉइंट पर क्या हो रही है? कन्वर्ज होती हुई दिखाई, इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड एंड कन्वर्जिंग मिरर। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, तो इसका आउटवर्ड होगा ना, ये रिफ्लेक्टिंग होगा हमारा,
यहाँ से आएगा और रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर चली जाएगी रे। ठीक है, ये इन पर आएगी और यहाँ से बाहर की ओर चली जाएगी। तो ये क्या होगा बेटा, डाइवर्जिंग मिरर हो गया। कैसा हो गया, डाइवर्जिंग, बाहर की ओर जा रहा है, राइट। इसे बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो दोनों मिरर क्लियर हो गए हमारे। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। तो ये वह इम्पॉर्टेंट है बेटा कि जो यहाँ पर हमने देखा है, राइट, क्या देखा है हमने कि जो एफ है वो क्या होगा, रेडियस का हाफ होगा बेटा, राइट। तो ये याद रखना है हमें कि फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होगा, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2, राइट, क्लियर। अब नेक्स्ट, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर्स। ये सारे रूल्स दिए गए हैं, इसको आपको देखना है। तो देखिए, फर्स्ट रूल कहता है, आर रे पासिंग to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of convex mirror and appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। ऐसे पढ़ूंगा मैं तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं, राइट। तो देखिए ये है, अगर बेटा ये अगर ये प्रिंसिपल एक्सेस होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सेस। अगर इसके पैरेलल कोई लाइन, पैरेलल कोई लाइट आती है, रे लाइट, तो पैरेलल आती है तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी बेटा, फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। अगर तुम्हें कभी फोकस पता करना हो किसी भी चीज़ का, चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, किसी कोई लेंस हो या मिरर हो, किसी का भी, तो आप ऐसे करके पैरेलल जो रे आएगी ना, जहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी या रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होके जहाँ से जाती है वो क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस, कैपिटल एफ होता है, राइट। अब सेकंड, तो हमने क्या देखा कि पैरेलल आती है तो कन्वर्ट होके फोकस पे चली जाती है। सेकंड, ऐसे ही अगर हम देखें कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव कॉन्वेक्स में देखेंगे तो पैरेलल आती है बेटा और ये अपीयर होती हुई हमें फोकस से दिखाई देती है और फिर बाउंस बैक होके इधर को रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट, रिफ्लेक्ट होके इधर को चली जाती है ब्लेंडिंग होके। अब देखो बेटा थर्ड, सेकंड केस क्या है, अगर ये रे हमारी फोकस से आती है तो ये पैरेलल होके चली जाती है, जस्ट उल्टा हो गया, पैरेलल आती है फोकस से जाती है और फोकस से आए तो पैरेलल बन जाएगी, निकल जाएगी, राइट। सेम केस यहाँ होगा, राइट। तो ये क्या होगा, फोकस से आएगी, ऐसे आती हुई दिखाई देगी, लेकिन हमें अपीयर होती दिखाई फोकस से, रिफ्लेक्ट होके ये चली जाएगी। सेकंड केस। थर्ड केस क्या है बेटा, थर्ड केस है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और वहीं बाउंस बैक होके चली जाएगी, तो ऐसे इन्वर्ट आएगी और बाउंस बैक होके उसी रास्ते के थ्रू बैक हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेम कंडीशन देखो यहाँ पर, यहाँ से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंस बैक होके निकल जाएगी। फोर्थ केस क्या होगा, फोर्थ केस होगा हमारा, ये इंसिडेंट रे आएगा और पोल से बाउंस बैक होके निकल जाएगी, राइट। ऐसे ही यहाँ होगा बेटा, ये दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर चारों कंडीशन याद रखना है कि अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सेस तो फोकस से जाएगी। सेकंड रखना है, अगर फोकस से आती है तो पैरेलल होकर लेट जाएगी वो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वहीं से वापस चली जाएगी, ठीक है। और पोल से आएगी तो पोल से बैक हो जाएगी वहीं की वहीं, राइट। इस कंडीशन में आई और आर इक्वल होते हैं, राइट। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे देखिए, ठीक है, अब आप देख सकते हैं नेचर ऑफ इमेज कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखिए बेटा, रे डायग्राम फॉर इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का हमें देखना है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाना बहुत आसान है। अब आप देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो ऐसा आएगा और फोकस से चले जाएगा। इसके लिए ऐसे ही हम इसमें लेंगे, देखो आता है, पैरेलल आती है रे और ये फोकस से अपीयर होते हुए दिखा देती है। ये कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों साइड दिखा रहा है हमें। तो कॉनकेव मिरर में हमें दिखागा
एक ये हो गया बेटा, एक फोकस ये जा रहा है, यहाँ से बाउंस बैक होता है, तो हमें कहाँ दिखा रहा है, यहाँ। ठीक है, यानी इन्फिनिटी से अगर रख आती है बेटा, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर, बहुत डिमिनिस्ड साइज का। सेम थिंग यहाँ होगी बेटा, ये आएगा और चला जाएगा, और हमें इमेज कहाँ देगा, वर्चुअल इस टाइप से यहाँ इमेज देगा। थर्ड थिंग में क्या होगा, ठीक है। अब सेकंड थिंग में क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के नियर आ जाएगा, सेकंड कंडीशन नियर होगा, तो ये बेटा यहाँ से कर फोकस से जाएगा, और ये जो होगी लाइन वो यहाँ से बाउंस बैक होके यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ जो मिल रही है बेटा, ये जो कंडीशन वही है, मतलब इन्फिनिटी ही चल रहा है, राइट। तो ड्रॉ हमें इमेज कैसे बनानी है, हमें इस टाइप से आएगा और यहाँ से बाउंस बैक होके यहाँ, तो यहाँ जो बनेगा इसे बोलेंगे इमेज, राइट। ठीक है, सेम थिंग यहाँ भी इमेज बनेगी बेटा, देखिए। तो कौन केम में कैसी बन रही है, वर्चुअल मिल रही है या रियल, तो रियल मिल रही है, यहाँ वर्चुअल मिल रही है, राइट। इस टाइप से हमने बनाना सीख लिया है इमेज, तो इमेज बनाना सीख गए हैं आप, आई होप। अब देखिए, अब हमें देखना है इसके कुछ चीज़ें, तो देखिए मैं एक बार आपको ले चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप चैप्टर देख सकते हैं ये, ठीक है ना। कॉनकेव कॉन्वेव मिरर हो गया हमारा, ये हो गया कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर हो गया बेटा, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो यहाँ पर लाइट कन्वर्ज होके आ रही है, यहाँ डाइवर्स हो रही है, तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर होगा वो डाइवर्स होगा, कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग होगा, राइट। ये हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन निकालने के लिए मैंने बताया आपको बहुत सारे पॉइंट्स। तो देखिए, अब ये कुछ पोजीशन हैं, इसको हमें याद करना है। अभी इन्फिनिटी पर पोजीशन होगी तो फोकस पे बनेगा, है ना, इमेज फोकस पे बनेगा। बियॉन्ड सी है तो बिटवीन एफ और सी बनेगा, एट सी है तो एट सी पर ही बनेगा, सी और एफ पर है तो बियॉन्ड सी बनेगा, एफ पर है तो एट इन्फिनिटी पर, बी पी और एफ पर बनेगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। और साइज़ इमेज का क्या होगा और नेचर क्या होगा, ये अभी मैं एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। देखिए, अब आप देखिएगा यहाँ, ये मैंने बता दिया है आपको सारा, चारों कंडीशन बता दी हैं, रेखा कहाँ कहाँ होगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर नंबर 1, राइट। तो फिगर नंबर 1 में आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ इन्फिनिटी पर इमेज रखी हुई है, इन्फिनिटी पर रखी है, तो हमारा कहाँ जा रहा है, फोकस पे, फोकस पे हमें मनता दिखाई दे रही है, और रियल है तो हमें छोटी दिखाई देगी, काफ़ी छोटा। और कैसा होगा, इन्वर्टेड ही होता है, राइट। अब देखिए, ये है, अब इन्फिनिटी से थोड़ा सा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले आए हम ऑब्जेक्ट को। जब पास ले आ रहे हैं तो देखो यहाँ पर साइन दिख रहा होगा, पास ले आ रहे हैं, तो पास लाने से क्या हो रहा है, एक लाइन तो पास थ्रू फोकस से जाएगी, सेकंड जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हम कहाँ से करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जहाँ से जाती है वहीं से वापस हो जाती है ना। जो मैंने रूल्स बताए थे रे के, तो वहाँ से देखिएगा, तो वहाँ से आया वहीं से वापस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये रूल्स होता है। तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड दिख रहा है और छोटा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट से कैसा दिख रहा है, और इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच बन रही है। अब फिगर नंबर आप सी देखिए, फिगर नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसी के साइज़ का इन्वर्टेड फॉर्म में हमें इमेज फॉर्म बनाया हुआ दिखाई देता है, बी डैश ए डैश बनता है, देखिए, ठीक है। और अगर हम बेटा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ए बी को, तो देखिए इससे बड़ा बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में छोटा था, फिर सेकंड में और बड़ा हुआ, इसमें और बड़ा हुआ, फिर डी कंडीशन में और बड़ा हो गया, क्योंकि हमारा जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जा रहा है, पोल की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं, पोल की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो लास्ट में देखिए, और एफ पर ही आ गया, तो यहाँ इनफाइनाइट पे कहीं बन रहा होगा, काफ़ी बड़ा बनेगा। और एक ये स्पेशल केस होता है एफ़, जहाँ पर क्या होता है, हम अगर इसको रख दें एफ़ और पोल के बीच में बेटा, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है एफ़। अगर पोल और एफ़ के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं
तो इसकी वर्चुअल देगा, ये कैसा देगा, वर्चुअल देगा और काफ़ी बड़ा देगा और इरेक्ट देगा, कैसा देगा, इरेक्ट। तो ये स्पेशल केस है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बनाने का तरीका क्या है, एक यहाँ से बाउंस, यहाँ से लाइन इंसिडेंट रे पोल से होके बाउंस बैक होकर निकल जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, और एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहाँ से जाती है वहीं से बाउंस बैक हो जाएगी, लेकिन हमें एपियर होती है यहाँ दिखाई देगी और एपियर होती है यहाँ दिखाई देगी, तो हम यहाँ पर बनाएंगे इस कंडीशन। तो एफ वाला स्पेशल केस है, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। आप कहेंगे तो मैं एक बार फटाफट रिवीजन करा देता हूँ आपका। देखिए, अगर ये है, ठीक है, स्टेप से मिरर है, ठीक है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और इधर पेंटेड है बेटा, तो ये ऐसा आएगा और फोकस से पास थ्रू हो जाएगा। सेकेंड रे हमारी यहाँ से जाएगी, राइट, और ये यहाँ से पास होगी। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बिटवीन होगा, मतलब पास होगा, तो कहाँ इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। अब आप एक चीज़ और देखिएगा कि एक और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बनाया हमने, सॉरी, एक इमेज बनाया। अब देखिए, तो स्पेशल केस जो था, एक केस ये वाला याद रखना है कि एक लाइन ये होती है और फोकस से पास बैक होकर जाती है, तो ये फोकस हो गया, और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तुम कोई वस्तु ऑब्जेक्ट रखते हो तो बेटा ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वहीं मिलेगी। तो आपको जितनी ऑब्जेक्ट की साइज़ है उतनी ही इमेज की साइड दिखाई देगी, यानी ए भी इमेज है तो उतनी ही साइज़ की बी डैश बी डैश इमेज। तो दोनों स्पेशल केस है, ये भी स्पेशल केस क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पोल होता है। और लास्ट जो केस बताया मैंने, एक केस जो होता है इस टाइप से, है ना, है ना, यहाँ से हम पेंटेड कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पोल होगा और यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रख देंगे हम, तब ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे बेटा, तो क्या होगा, एक लाइन ऐसे जाके इधर पास थ्रू हो जाएगी, ठीक है, और एक जो लाइन होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे निकलती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये को हम डॉट डैश कर देंगे, इधर से देखोगे आप, इधर पे लाएंगे तो ये बनता हुआ दिखाई देगा हमें इस टाइप से, राइट। तो ये वर्चुअल है और काफ़ी बड़ा है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लार्ज है, बी डैश ए डैश, ठीक है, ये बी और ए ऑब्जेक्ट था तो काफ़ी बड़ा बना है, ये इम्पोर्टेंट है। तीनों क्लियर केस हो गए होंगे, आई होप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम कॉन्वेक्स मिरर की देते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस बनते हैं, ठीक है ना, दो ही केस बनते हैं, और दोनों केस बनते हैं तो आप देख सकते हो, अगर ये इधर को होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इधर दूर रखा हुआ, काफ़ी दूर है, तो यहाँ से अगर आएगा इन्फिनिटी से, तो यहाँ से और एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, और एक लाइन जो पैरेलल आती है वो फोकस से अपीयर होती दिखाई देगी, एक तो अपीयर होती है, और एक यहाँ से बेटा, तो यहाँ जो काफ़ी छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, इरेक्ट। तो बिटवीन कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी एंड पोल, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो इमेज कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल, वर्चुअल है, स्मॉलर एंड इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉलर, इरेक्ट। सेकंड सेकंड केस है, अगर ये हमारा इसके पास होता है तो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल के बीच रखा है तो ये, और एट इन्फिनिटी रखा है, तो इन्फिनिटी में क्या होगा, इस केस में बाउंस बैक होकर इधर चला जाएगा, तो यहाँ डिमिनिश्ड साइज का दिखाया जाएगा। तो बिहाइंड द मिरर एट फोकस एफ, एफ पर ही बनेगा, वर्चुअल बनेगा, पॉइंट साइज और इरेक्ट बनेगा। तो दोनों कंडीशन याद रखना, ठीक है। अब देखिएगा आप, है ना, मैं दिखाता हूँ इसकी जो टेबल है बेटा, ये हमें याद रखनी है, कौन, ये कौन की मिरर वाली टेबल इन्फिनिटी पर है, तो पोजीशन कहाँ है हमारी, एट द फोकस, इमेज की फोकस बनेगी, बियॉन्ड सी है तो एफ और सी पर, एट सी तो एट सी, पोजीशन भी सी पर है तो ए भी सी पर बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट का इंपॉर्टेंट, पोल और फोकस में ये बिहाइंड द मिरर और इन लार्ज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, स्पेशल केस बताया था जो मैंने, राइट। और सारे के सारे रियल होंगे और इन्वर्टेड होंगे, बस ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा जब कहाँ रखेंगे, बिटवीन पोल और फोकस, राइट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखिए,
आगे चलते हैं हम। ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? अ फुल लेंथ इमेज टू टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन स्मॉलर स्मॉलर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हमें बड़े बड़े पेड़ या ट्री को देखना है तो हम क्या लेंगे? कॉन्वेक्स मिरर लेंगे और उस पर हमें छोटा सा दिखाई देगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यूज द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? व्हीकल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ये कैसी इमेज देता है? डिमिनिश्ड इमेज देता है, वाइडर व्यू देता है एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड के कारण। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज टू ब्लाइंड टर्न और पॉइंट इमेज मर्ज ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ द बोथ साइड ट्रैफिक। ऐसे ही बेटा कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर ट्रैफिक होता है वहाँ पर किसी मोड़ पर, सड़क पे आपको दिखा होगा, मेट्रो वगैरह में आपको दिखाई दे जाएगा, मेट्रो स्टेशन पे, तो वहाँ एक क्या लगाया जाता है? इस दोनों साइड का हमें पता चलता है। स्लो पास और सिक्योरिटी मिरर में भी हम किसका यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का। इसके यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट। पहला तो रियर व्यू में क्या होता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। मेट्रो वगैरह में और सिक्योरिटी मिरर के रूम में भी क्या होता है? यूज टर्न, ब्लाइंड टर्न पर भी और सिक्योरिटी मिरर में, राइट। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिरर आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन काफ़ी इजी है, मैं 1 मिनट में समझा दूंगा। देखिए, जैसे एक ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्लेन, इधर जो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर एक्स डैश होता है, यहाँ वाई और वाई डैश होता है। ये 0 +1 +2 और इधर देखिए +(-1 -2). तो इधर कोई चीज़ें रखेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। इधर देखोगे आप तो एक्स को क्या काउंट करोगे? माइनस में। तो जो भी इधर क्या होगा वो माइनस में लेंगे। क्या लेंगे? माइनस में। अगर एक्स की डिस्टेंस लेनी होगी तो हम क्या लेंगे? माइनस में। और इधर एक्स, अगर एक्स पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो कैसा लेंगे? वो प्लस में लेंगे, राइट। ये हो गया। तो एक्स में हमने देखा इधर ओरिजिन से लेफ्ट साइड, राइट साइड लोगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड लोगे तो नेगेटिव। और वाई एक्सिस की बात करें, ठीक है, तो ये ओरिजिन है। अगर ऊपर को देखो, अपवर्ड देखोगे तो पॉजिटिव लोगे और डाउनवर्ड दोगे तो माइनस लोगे, राइट। ये चारों चीज़ें याद रखना है बस। एक्सिस के लेफ्ट राइट और अप और डाउन में देख लेना है वाई एक्सिस में, ठीक है। तो आप देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पी से देखेंगे तो इतना यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये भी, तो ये डिस्टेंस टू वर्ड लेफ्ट है तो नेगेटिव लोगे। और इधर देखो, एक्स एक्स की डिस्टेंस इधर है तो पॉजिटिव लेंगे, डिस्टेंस टू वर्ड इस साइड को जा रहा है तो। और देखिए अपवर्ड ऊपर को जा रहे हैं तो बाई एक्सिस देखोगे तो प्लस लोगे, और नीचे को देखो बाई एक्सिस क्या होता है? माइनस के होते हैं, क्योंकि हमने इंटीजर पढ़ रखे हैं। 0 -1 -2 -3, तो नीचे वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन होगा। इससे आपको सारे के सारे साइन याद हो जाएंगे। मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u, ये मिरर फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन m = इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज सॉरी, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा मैग्नीफिकेशन का। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। लेंस फार्मूला हो गया, इसमें ध्यान रखना प्लस होता है, यहाँ क्या होता है? प्लस होता है। और वहीं लेंस में देखोगे तो माइनस होगा, मिरर में देखेंगे तो प्लस। मिरर में कैसा होगा? प्लस होता है और लेंस में माइनस होगा, राइट, ठीक है। मैग्नीफिकेशन से हमें क्या पता चलता है? m नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी, राइट। मैग्नीफिकेशन में क्या है? रियल होगी। और m पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगा, है ना। देख लिया था हमने, इधर नेगेटिव है तो कैसा होगा? नेगेटिव है तो कैसी होगी? रियल होगी। इधर रियल बनती और साइड क्या बनेगी? इस साइड, अगर इस साइड देखोगे, इस लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। एच आई क्या होता है? इमेज ऑफ इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जब m हो,
मैग्नीफिकेशन 1 हो तो ये दोनों इक्वल होंगे, इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे। जब m बड़ा होगा बेटा तो यानी इमेज बड़ी होगी और ऑब्जेक्ट छोटा होगा, ठीक है। यानी इमेज कैसी बनेगी, इन लार्ज। और इमेज छोटी हो गई, ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, राइट। इमेज छोटी, ऑब्जेक्ट बड़ा तो इमेज बनेगी छोटी, राइट। प्लस साइन इंडिकेट वर्चुअल इमेज और माइनस साइन इंडिकेट रियल इमेज, राइट। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पॉजिटिव एंड मोर देन वन इट कॉनकेव मिरर एंड एम इज नेगेटिव ऑन कॉन्वेक्स। याद रखना, एम अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव एंड वन, पॉजिटिव एंड मोर देन वन होगा कॉनकेव, और नेगेटिव होगा कॉन, इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। एम इज अ नेगेटिव कॉनकेव मिरर, राइट। ये कॉन्वेक्स होना चाहिए, राइट। ओके, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में हैं। देखिए क्वेश्चंस आपको देखेंगे, जो चैप्टर की टेक्स्ट बुक में जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी हम करते जाएंगे साथ में, क्योंकि हमारा मिरर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देखिए, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑन अ कॉनकेव मिरर फर्स्ट। Radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is the focal length? Name of mirror that can give an erect and virtual image of an object. Why do we prefer a convex mirror as a real view mirror in vehicles? सारा चीज़ हम पढ़ के आए हैं, इसके आंसर्स देख सकते हैं आप। देखिए फर्स्ट का आंसर जो है, देखिए डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस और कॉनकेव मिरर, तो बता आसान है, ठीक है। लाइट रे as the parallel to the principal axis of a concave mirror converges at a specific point its principal axis. After reflecting from the mirror, the point is known as the principal focus of a concave mirror. मैंने बताया था कॉनकेव मिरर होता है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल को ले जाती है और यहाँ से जाएगा तो ये फोकस होगा बेटा, कहाँ से होगा, फोकस से। तो रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, ठीक है, प्रिंसिपल आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर द पॉइंट इज नॉन एज, तो ये पॉइंट क्या हो जाना जाता है, इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस। इसे कैपिटल एफ से आप बताते हो, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, राइट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर यानी रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, रेडियस क्या दिया कर्वेचर किसका, मिरर का, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, फोकल लेंथ का रिलेशन होता है रेडियस अपॉन में 2। अगर रेडियस 20 है बेटा तो 20 डिवाइड बाई 2, सो यू गॉट 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। योर आंसर इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द मिरर that can give an erect in a large image on object. Answer, when an object is placed between the pole and principal focus of a convex mirror, image formed is virtual, erect and enlarged. मैं बताया था जो स्पेशल केस था, अगर आप प्लेस करते हो बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस तो ऑन अ कॉनकेव मिरर, तो कैसी बनती है फॉर्म, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, राइट। देखिए आप देख सकते हैं ये वाला, अगर ये पोल है और फोकस के बीच हमने रख दिया तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, काफ़ी बड़ी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, किस केस में, ये कॉनकेव में, राइट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चौथा, वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियल व्यू मिरर एज अ व्हीकल, क्योंकि वो छोटा देता है और छोटा साइज देता है और वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है, इसीलिए ट्रैफिक में हम यूज़ में, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट में लोग मतलब कार्स में, बस में यूज़ करते हैं रियर व्यू का, है ना, कार्स वगैरह। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। जो भी उसके सामने होता है उसकी कैसी होती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड,
They are preferred as a rear view mirror as vehicle in vehicles because they are give a wider view field of view which allow the driver to see most of the traffic behind him. तो ड्राइवर काफ़ी चीज़ को देख पाता है। आई होप कि चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो आपके चारों के चारों क्वेश्चन ये हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, पहले आप देखिएगा, है ना। तो काफ़ी मज़ेदार है ये वीडियो, आप देखिएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, सीधा गया, है ना। अब शुरू से दिखाता हूँ मैं एक बार और। देखिए बेटा, अगर ये स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो अगर ये सीधी लाइन से ड्रॉ हो रही है तो ये सीधी फास्ट थ्रू होते जा रही है। अब देखिए, अब ये देखो, क्योंकि ये ग्लास है, कांच है, तो बाहर एयर है, एयर से ये ब्लेंड हो रहा है, तो ये क्या हो रही है, इसकी स्पीड में के कारण क्या हो रहा है, अंदर जाके इसकी क्या हो रहा है, देखिए ये थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, फिर आ रहा है, मतलब सीधी लाइन नहीं आ रही है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे यहाँ से और यहाँ पैरेलल हो जा रही लास्ट में। देखो, पहले इन्वर्ट रे आई, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और बाद में ये निकल जाती है। तो तीन प्रकार की हमें दिखाई दे रही है। पहले देखो, ये जब अंदर गई तो ये नॉर्मल से टू वर्ड अंदर की ओर झुक गई, फिर बाहर गई तो फिर बाद में दूर को भाग गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। अभी मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये फिगर एक बार में और ध्यान से लिख सकते हो आप। देखिए, सीधी आई, सीधी, जैसे तिरछी की ये मैंने लाइट को, तो ये तिरछा होना शुरू हो जाता है, बिकॉज द मीडियम डिपेंड द मीडियम, बिकॉज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ओके, चलिए, तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ब्लेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ब्लेंडिंग, ब्लेंड करती है लाइट, क्या करती है, ब्लेंड करती है, ब्लेंडिंग टू लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, तो देखिए, ये जो आप देख सकते हैं फिगर में, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आया, ठीक है। अब ये एयर थी, ऊपर एयर था, नीचे वाटर है, तो ये वाटर के कारण बेटा ये सीधी ना जाके कैसी अंदर को ये क्या हो गया, बेंड हो गई। किसके बेंड हो गई, थोड़ी, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो गया है, राइट। तो नॉर्मल की ओर बेंड होने के कारण ये क्या होगा, टूवर्ड द नॉर्मल, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। इसी का एग्जांपल ये देखते हैं कि पेंसिल को हम जैसे ही वाटर में डालते हैं तो ये सीधी ना होके थोड़ी हमें ऐसी हुई तिरछी दिखाई देती है, राइट। अब देखिए एक चीज़ और, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमर्ज्ड रे, इसके नाम क्या है। इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल है, या इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो यहाँ जो वाटर था इसलिए नॉर्मल की ओर क्या होगा, टू वर्ड हो गया, यानी झुक गया। फिर जैसे ही बाहर गया, ये एयर में गया, तो फिर दूरा इमर्ज्ड हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गया, फिर दोबारा क्या, इमर्ज्ड हो गई, तो थीटा ये हो गया, नॉर्मल यहाँ डाल देंगे, राइट। तो ये हो गया बेटा, इसे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, इमर्ज्ड रे बोलते हैं, राइट। तो ये क्या कहलाता है बेटा, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल एपियर्स हायर। स्विमिंग पूल की जो बॉटम होता है वो कैसा बड़ा, हमें हायर, ऊपर एपियर होता है, बड़ा सा, मतलब उठा हुआ दिखाई देता है। पेंसिल पार्शली इमर्ज्ड, देखो पेंसिल पार्शली इमर्ज्ड होती दिखाई दे रही है। इन वाटर एपियर टू बेंड एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। ओके, ऐसे ही अगर हम पानी में क्या डाल देते हैं, लेमन, तो लेमन प्लेस्ड इन अ गिलास टम्बलर एपियर बिगर। लास्ट, लेटर of a book appear to be raised when seen through a glass slab. Reflection take place when light strike on a polished surface like mirror or bouncing back. Next, extent of blending of ray of light at the possible parallel faces or rectangle glass slab is equal and opposite, so emerged parallel light incident ray। तो ये कह रहे हैं बेटा, देखिए ये हो रहा है ना, एक मिनट में बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो रे थी, ये और ये वाली रे, दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई।
तो इमर्ज्ड रे और इंसिडेंट रे दोनों लास्ट में कैसे हो जाते हैं बेटा, पैरेलल। जब ऐसे करके गई फिर बाद में गया तो फिर दोबारा कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, राइट। ओके, आई होप कि ये लास्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है। व्हाट इज स्फेरिकल लेंस। अब लेंस की बात करते हैं। तो लेंस टू टाइप्स के होते हैं। तो व्हाट इज लेंस, लेंस स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। देयर आर टू टाइप्स। तो फर्स्ट ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस होगा जो बाउंडेड होगा टू स्फेरिकल सरफेस, ऐसे करके दो स्फेरिकल सरफेस से क्या होगा, बाउंड हो गया। या फिर ये ऐसा हो सकता है ना। तो दो कॉनकेव मिले हों या दो कॉन, तो कॉनकेव साइज मतलब सेम का, या फिर हम कहेंगे कॉन्वेक्स, इस तरीके से। तो ये जो बेटा यहाँ जो बन रहे हैं एक तरीके से हम देखेंगे, तो ये जो ऊपर को बाहर की ओर दिख रहा है, जैसे मैं एग्जांपल क्लास में देता हूँ, जैसे सेठ लोगों का क्या हो जाता है, पेट बढ़ जाता है बाहर को, तो पेट उठा दोनों साइड दिखाई देता है, इसे बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। में कौन सा लेंस हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स। और ये कॉनकेव लेंस होगा, लेंस। इसका नाम में एस क्यों लगता है, देखो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि दो लेंस हैं, यहाँ पर वो कॉनकेव लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस थिक इन अ मिडल, थिक इन अ मिडल यानी काफ़ी थिक होगा, चौड़ा मोटा होगा बीच से। कन्वर्स लाइट रे इन द पॉइंट, ये कन्वर्स करेगा भी बताता हूँ। थिना मिडल, ये मिडल में कैसा थिन होगा, ये थिक होगा और ये थिन होगा। डाइवर्स लाइट रे टूवर्ड, अब देखिए ये है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से लाइट आती है तो जाकर फोकस से चली जाती है, इधर से आएगी फोकस से चली जाएगी, तो ये सारी लाइट आएंगी फोकस से चली जाएंगी ऐसे करके। इसीलिए कह रहे हैं ये कैसा है, कन्वर्ज करता है लाइट को, राइट। और ये क्या करता है, यहाँ से लाइट जाएगी और पास थ्रू के इधर बाहर को भागेगी, ठीक है, बाहर को भागेंगी, इसे बोल रहे हैं डाइवर्स रे आउटवर्ड। ओके, अब चलिए कुछ स्पेशल मतलब इसके कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है जो अपन ने सीखे थे मिरर में, सेम यहाँ भी सीखना है हमें। तो देखिए कुछ होते हैं स्पेशल केस। अगर एक लाइन अगर हम इसके ओरिजिन से मतलब ये जो ओ होता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम ओ से पास थ्रू कराएं तो ये सीधी चले, बिना इधर उधर जाए सीधी चली जाती है, देखो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव लेंस कोई भी हो दोनों। लेकिन अगर पैरेलल आ रही है बेटा तो ये कहाँ फोकस से जाएगी, और अगर पैरेलल आ रही है तो ये दूर भाग जाएगी और हमें अपीयर होती दिखाई देगी फोकस से, ठीक है। थर्ड केस, अगर फोकस से रे आती है तो पैरेलल हो जाती है ना। अगर ये कैसी आती है, फोकस से आती है हमें अपीयर होती दिखाई देगा और पैरेलल पे चली जाएगी। तो ये कुछ रे थे। अब इसके इंपॉर्टेंट टर्म देखो, ऑप्टिकल सेंटर, वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ओ क्या होगा, यहाँ पर जो ओ होता है कोई भी लेंस हो उसमें जो ओ होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जैसे कोई भी लेंस होता है तो इसमें जो लाइन खींची होती है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस जो यहाँ होता है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। F1 इधर, और आगे जाओगे तो यहाँ C नहीं बोलते, यहाँ पर 2F2 होता है, 2F2, और इधर होगा 2F2, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। The principle, a straight line passing through the optical center or center of curvature. Focus, point where light ray converge or appear to diverge, ठीक है, ठीक है। Focal length, distance में optical center and focus. Center of curvature C1 C2, center of spherical formed lens surface. रे डायग्राम्स अभी मैंने बता ही दिया था, है ना। अब इसके कुछ रे डायग्राम्स हैं, कहाँ पर इमेज है, तो कॉन्वेक्स के देखेंगे हम, फिर कॉन्केव के लेंस देखेंगे दोनों, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमें कहाँ दिखाई देगी इमेज कन्वर्ज होते हुए, यहाँ। ऐसे ही यहाँ से देखो जाओगे आप तो यहाँ से इन्वर्टेड होता हुआ अगर हम 2F2 के पास में रख देते हैं लगभग, तो ये जो होगा बेटा, एक रे हम ये डालते हैं और एक जाएंगे, ये हमेशा देखो, ये देखो एक रे हमें कहाँ से डालेंगे,
मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, और एक पैरेलल हो जाएगी बाउंस वैल्यू। तो देखो फोकस से होते जाएगी और पार, तो यह मतलब ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट को हम नियर बाई लेते जाएंगे, बस बनती जाएगी। तो देखो यहाँ इसके पास लाए तो कहाँ बना, इन्वर्टेड बना है, और कैसा बना है, रियल बना है। यहाँ भी देखो इन्वर्टेड है, रियल बना है। इससे ये वाला केस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये 2f2 पे रखा है ये भी, तो इसकी ऑब्जेक्ट की साइड, इमेज की साइड दोनों इक्वल होती हैं, और कहाँ रखा हुआ है, 2f2 पर, ये 2f2 पर रखा होता है। सेम थिंग यहाँ ए भी यहाँ रखा है, तो इसकी जो इमेज बनेगी काफ़ी लार्ज बनेगी, और C2 यानी 2f2 के बाद इधर, ठीक है, आफ्टर 2f2 के बाद, जब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट, C और F1 यानी F1 और 2f2 के बीच रखे जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर F1 पे यानी फोकस पे ही रखते हैं तो काफ़ी बड़े बनेगा, और इनफाइनाइट टाइम मतलब दूर बनेगा, काफ़ी इनफाइट मतलब काफ़ी दूर बनेगा, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, फोकस और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच रख दें, तो ये इरेक्ट ही बनेगा और वर्चुअल बनेगा। जैसा हम मिरर में पढ़े थे ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, दोनों में बेटा एक सी चीज़ें बन रही हैं, ठीक। तो हम कहेंगे उनका नेचर भी एक सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। जब लेंस में आती तो उल्टा हो जाता है कॉनकेव का, राइट, इतना याद रखना, ठीक है। तो स्पेशल केस समझ में आ गया, क्या बनेगा, ये वर्चुअल होगा, सपने में आएगा और बड़ा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ देख सकते हो आप यहाँ पर कि यहाँ अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ 1 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे, है ना। तो देखिए, जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा पास आता जा रहा है, छोटा डिमिनिश्ड था, इमेज फिर और बड़ा हो गया, फिर और पास लाए, उसके ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर हो गए, यहाँ छोटा था, फिर यहाँ और पास लाए, इमेज बढ़ गया, फिर और पास लाएंगे तो इमेज और बड़ा हो जाएगा, और एक स्पेशल केस में इरेक्ट हो जाएगा, और सारे में इन्वर्टेड होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, मैं एक बार समझा देता हूँ। ऐसे वो होता है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनेगा काफ़ी छोटा, जैसे ही तुम इन्फिनिटी और इसके बीच लाओगे तो ये इमेज बनेगा थोड़ा सा इधर, और ये 2f2 है के बीच में बनेगा। फिर आप और फोकस 2f2 पे रख दोगे तो इमेज के इक्वल ही बन जाएगा, और पास लाओगे तो बेटा और बड़ा बनेगा, ठीक है। ऐसे लाते जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, साइज इनकी बढ़ती जा रही है, इमेज को ले रहे हैं। फिर यहाँ पास रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, स्पेशल केस बनेगा जो काफ़ी इधर इमेजनरी टाइप से बनेगा, ठीक है, जो लास्ट केस था, राइट। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कॉनकेव लेंस में देखेंगे आप, तो कॉनकेव लेंस में दोनों चीज़ें हैं, बस दो ही बनते हैं इसमें, ध्यान रखो। अगर ये इन्फिनिटी पर है तो पॉइंट साइज का बनेगा, और कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। इधर देखोगे, इधर बेटा कॉनकेव है तो यहाँ पर मिल रही, तो ये काफ़ी छोटा होगा, और इससे छोटा होगा, बिटवीन इन्फिनिटी और फोकस के बीच होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम, बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, और फोकस कहाँ बनेगा, और इमेज कहाँ बनेगी हमारी, फोकस और ऑप के बीच बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड साइज। ओके, क्लियर, वेरी गुड। फॉर्मूला लेंस क्या होगा, देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मिरर में प्लस था, यहाँ माइनस है, f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। मैग्नीफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है इमेज, अगर यहाँ m ऑब्जेक्ट ओ, तो m क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये लेंस के केस में पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, और मिरर के फॉर्म में यहाँ माइनस था, ये इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। मिरर के केस में क्या पढ़ा आपने, इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस
डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये माइनस हो, इतना याद रखना। ठीक है, अब m की वैल्यू अगर 1 से बड़ा है ना तो इनलार्ज होगा, m की वैल्यू 1 से छोटी है तो डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, और m की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी वर्चुअल रेक्ट, और छोटी है तो रियल और इन्वर्टेड। राइट, पावर ऑफ लेंस क्या होगा? पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं होता बेटा, ये फोकस का इन्वर्टेड होता है, फोकस लेंथ का, उसे हम मीटर में लेते हैं। राइट, सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो 100 अपॉन सेंटीमीटर बन जाएगा। तो जनरली अपन को याद रखना है 1/f मीटर। ठीक है, इसकी इकाई होती है यूनिट डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर देता है, कॉन्वेक्स देता है लेंस, तो याद रखना x मतलब प्लस दिख रहा है तो प्लस पॉजिटिव, कॉन्वेक्स है ना प्लस, कॉनकेव माना नेगेटिव, एक ही याद कर लो तो एक आराम से हो जाएगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P1 P2 P3 से करके हम कॉम्बिनेशन कर देंगे। राइट, एप्लीकेशंस हैं कैमरा, प्रोजेक्टर्स, मैग्नीफाइंग ग्लासेस और कॉनकेव का स्पेक्टिकल्स ऑफ मायोपिया, इनमें यूज़ होगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर भाग जाता है, क्योंकि डेंसर से रेयर, डेंसर है या रेयर है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से भागता है, तो इसको पहले यहाँ जा रहा था, फिर हमने थोड़ा सा इधर इधर शिफ्ट कर दिया, इस लाइन को कहाँ शिफ्ट कर दी, इसके इधर इधर शिफ्ट किया तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो सी क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो जब आर की वैल्यू है तो क्रिटिकल एंगल जैसे ही 90 से ज़्यादा होता है तो ये क्रिटिकल एंगल किस में बदल जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल TIR बदल जाता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में बाहर जाएगी। कंडीशंस में क्या होती है कि रेयर से ही जाना चाहिए, हमेशा डेंस से क्या जाना चाहिए? रेयर में जाना चाहिए। तो स्नेल का लॉ होता है NR/NI, N2/1। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। ठीक है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक इनटू द डेंसर मीडियम, तो हम बोलेंगे TIR। ओके, यूज़ का ऑप्टिकल फाइबर में, प्रिज्म में, डायमंड में और बायनाक्यूलर और पेरिस्कोप्स में इनका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये दिया गया है, देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस, तो अच्छे से आप पढ़ लेंगे इसको, है ना। और ऐसे ही दिया गया है डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, तो आराम से पढ़ लीजिएगा आप। फिर इधर देखो कॉनकेव, ये मिरर है, दोनों मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस है ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आपके फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं बुक के, वो कर लेते हैं। तो देखिए बुक के जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट हम जाते हैं। देखो ये मैं आपको बुक दिखाता हूँ, तो देखिए ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे हमारे। अगले क्वेश्चन जो हैं वो दिखाई देंगे आपको। ठीक है ना, ये जो है ना MCQ दिए गए हैं, मिरर पर बेस्ड हैं। मिरर पर है तो आप सीधी वैल्यू देखो, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर यूज टू रियर व्यू ऑटोमोबाइल्स हैज़ बी रेडियस ऑफ 33 सेंटीमीटर 3 मीटर इन बस लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो 3 चीज़ें हैं, पोजीशन, नेचर और साइज। तो क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है हमें। तो फोकल लेंथ से हम क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ रेडियस दी है तो फोकल लेंथ हो जाएगी, तो 1.1। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब क्या है? ये कहाँ रखा गया होगा? एज द प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स का क्या बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, अब हम इसको रख देते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा बेटा? U दिया है और क्या दिया है हमें? F मिल गया है, तो हम V निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? V, यानी ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे इसमें रख के,
कैलकुलेट करने पर 1.01 प्लस में आएगा। तो इमेज कहाँ है बेटा, इमेज बन रही है बैक ऑफ द मिरर, ठीक है 1.5। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे एच अपॉन एच बी अपॉन यू। तो एच हमें निकालना है एच डैश अपॉन एच अपॉन यू प्लस बी अपॉन यू, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो 0. तो मैग्नीफिकेशन कितना बड़ा बना, थोड़ा सा, यानी इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर साइज बाय द फैक्टर ऑफ 0.23, राइट। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 दिया है, आप कर लीजिएगा। अब देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस इज कर्वेचर इज 32, है ना। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified real image of object placed 10 centimeter front of it, where is the image located। तो देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर, अगर फोकल लेंथ बेटा, फोकल लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, तो हमें निकालना है क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस बाई 2, तो 32 डिवाइड बाई 2, तो यू गॉट 16। तो 16 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे ही सेकेंड में पूछा गया है क्या, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, वेयर द इमेज लोकेटेड। तो इमेज है, तो बेटा एक फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज ऑफ डिस्टेंस में, तो ये वाला फार्मूला तुम्हें याद ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3 times दे रहा है, तो हाइट मान लेट करेंगे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h, तो इमेज कैसे बन रहा है, 3 टाइम है, तो 3 टाइम बना दिया है। और कैंसर मिरर है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव में कैसी बनती है, नेगेटिव बनती है, क्योंकि हमने देखा इधर रखेंगे तो नेगेटिव ही होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो v अपॉन यू हम देख लेंगे, तो 3h से h कैंसिल हो गया, तो 3 हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो v अपॉन यू 3 यू इंटू, तो 3 यू की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कहाँ रखा है यू, ये इधर रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर माइनस लेंगे, तो माइनस की वैल्यू यहाँ पुट करके तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चला, नेगेटिव साइन इंडिकेट इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर। ओके, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जो है मैं दिखाता हूँ बुक में, ये सारा पढ़ लिया है हम लोगों ने, सारी एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपको दिखाई देगा। देखिए एक हो गया कंप्लीट, ये करवा दिया मैंने, हाँ ये है, मैं आगे बताऊँगा इसका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, 4 क्वेश्चन यहाँ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं। देखिए, रे लाइट ऑफ ट्रेवलिंग इन द एयर इंटर ऑब्लिक्यूली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल अवे फ्रॉम द वाई। अगर एक है एयर से वाटर में जा रही है, तो कह रहे हैं कि ये बेंड होगी टूवर्ड और नॉर्मल की तरफ, या भागेगी उससे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और क्यों, वाई। तो देखिए आंसर, अगर रे ट्रेवल करती है तो आंसर द रे लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, तो क्लियर है। अगर हम एयर से एक रे डालते हैं और नीचे वाटर है, तो ये नॉर्मल से क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, इधर वो बेंड हो जाएगा, और सीधी ना जाके कैसे वो बेंड हो जाएगी, ठीक। क्यों, क्योंकि रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, तो जो रे लाइट ट्रेवल कर रही है कहाँ से, फ्रॉम एन ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ओके, गेट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल सिंस वाटर ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, a ray traveled from air into the water will bend toward the normal। ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या दिया है हमें 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बताते हैं, ऐसे चिन्ह होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, एम इक्वल सी अपॉन वी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड की लाइट क्या है, और जो भी हमें गिवन मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, उसे भी बोलेंगे, ये मीडियम की होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी दी है 1.50, हमें स्पीड दे दी है कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स, और मीडियम का हमें क्या निकालना है
मीडियम की स्पीड भी हमें दे दी, मतलब ये दे क्या निकाला, सॉरी, स्पीड ऑफ वैक्यूम दे दिया है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, और हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। तो गिलास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब गिलास की स्पीड हम बता देंगे। तो वी ऑफ गिलास, अब कैंसिल आउट करो तो वी इधर हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा बेटा, इसके नीचे चला जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, और काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी मीडियम की आप निकाल सकते हो। तो हमें मालूम होना चाहिए स्पीड ऑफ वैक्यूम कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो किसी का भी निकाल सकते हो। और वहीं स्पीड ऑफ वैक्यूम मिल जाए और मीडियम में स्पीड मिल जाए तो हम किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कुछ मीडियम दिए हैं। एयर में कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो 1.003, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और ऐसे ही आइस में इतना होता है, वाटर का 1.33 होता है, एल्कोहल का 1 ठीक है, रॉक साल्ट का इतना होता है। तो सबसे पहले एक एयर का रख लो, वाटर का रख लो 1.33 याद, और लास्ट में क्राउन ग्लास, क्या क्राउन ग्लास का 1.3, और हाँ डायमंड का याद रखना है कितना होता है 2.42 होगा गिलास का, 1.003 हो जाएगा एयर, बस दोनों आपको याद रखना है। तो हाईएस्ट डेंसर है डायमंड, एयर क्या है, इससे पता चलता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ क्लास में, कि अगर मान लो सड़क पे बहुत सारे मतलब सांप हो, तो आप स्कूटर बहुत स्पीड में निकल जाओगे, गाय पार्क या गाड़ी लिए हो, ठीक है। और वहीं अगर यहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे हों तो आप जा पाओगे, बहुत धीरे धीरे जाओगे अगर डेंस होगा। तो ये बताता है जितना डेंसर होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, है ना, उतना ही तुम्हारे क्या हुई स्पीड कम हो जाएगी, ठीक। और मीडियम कम होगा डेंस तो आराम से, इसलिए वैक्यूम में क्या होता है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, ठीक है। तो मीडियम डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन दैट मीडियम, मीडियम विच हैज़ हाइएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विल हैव हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। बस क्लियर, समझिए। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, और कम है तो ज़्यादा होगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप देख लीजिएगा, ये टेबल दी गई है ना, सेम हो जाएगा आपका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ, ये याद रखना, आप कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड इतना दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। इससे हमें क्या पता है कि डायमंड में क्या होगा बेटा, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, बस इसका मतलब ये है। आप देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड टू द स्टेप स्पीड ऑफ लाइट एज अ डायमंड विल रिड्यूस अ फैक्टर 2.2 कंपेयर टू द लाइट ऑफ एयर, ठीक, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे बैक एक्सरसाइज के हैं, बुक की जो बैक एक्सरसाइज है वो में। तो देखिए, वन डायोप्टर लेंस पावर ऑफ डिफाइंड, वन डायोप्टर और पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो मैं बताया था ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ एफ, ठीक है, सेंटीमीटर में होता है और डी से बताते हैं। पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ एफ इन मीन्स मीटर, मीन्स एफ जो होता है किसमें होगा, मीटर्स में होगा, पी बराबर 1/f मीटर्स। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर नोटेड बाय डी। वन डायोप्टर इज डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, क्या दिखाता है डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। जो डॉक्टर देते हैं 2+2 का लगा दिया किसी को 0.5 का चश्मा लगा दिया, किसी को 0.1 तो वो इसी पावर के अकॉर्डिंग लेंस यूज़ करते हैं डॉक्टर लोग। तो वन डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, ओके, ठीक है। अब ये बताना है आपको, इमेज बनाना है निडल ऑफ द डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट, वेयर द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इमेज इज इक्वलिटी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो जब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा तो क्लियर है 2f2 पे रखा गया तभी तो इक्वल होता है, ये मैंने बताया था स्पेशल के मतलब कि इसमें। तो उसमें क्या होता है स्पेशल के अंदर, ये किससे होता था, जब 2f2 है तो साइज भी बराबर होती है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे, आपका एक बैक एक्सरसाइज का है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया। फिर इसमें क्या पूछो, फोकल लेंथ बताना था, तो दोनों हाइट दे दी दोनों की, है ना, बराबर डिस्टेंस है दोनों, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा के आप
फॉर्मूला लगाओ लेंस का, तो माइनस लगा देना, लगा दोगे तो फोकस कितना है ये आ जाएगा। पावर निकालनी है, पावर ऑफ लेंस, तो 1/f, एफ की वैल्यू है ही तो पावर निकल जाएगी, और पावर निकल जाएगी तो कहेंगे पावर ऑफ द गिवन लेंस इज +4 डायोप्टर। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंस 2 मीटर। पावर निकालनी है पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स P/1/m मीटर, मीटर की वैल्यू दी है, डिवाइड करोगे तो अब देखो कॉनकेव है, तो कॉनकेव लेंस में क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव आप लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लोगे डिवाइड करो 0.5 डायोप्टर आएगा। इसका सेंस क्या निकल रहा है, नेगेटिव साइंस अराइज ड्यू द डाइवर्स नेचर ऑफ कॉनकेव लेंस, एंड द पावर ऑफ गिवन कॉनकेव लेंस इज -0.5 डायोप्टर, राइट। तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट यूज टू मेक अ लेंस, लेंस बनाने में किसका यूज है, वाटर बन सकता है, ग्लास बन सकता है, प्लास्टिक बन सकता है, क्ले, क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं होता है इसलिए नहीं बनेगा। लेंस allow light pass through it since clay does not show such property, ठीक है, it not cannot make a lens, okay। Image from the concave mirror object virtual erect or enlarge object, where should be position of the object, तो वर्चुअल हो, इरेक्ट हो, राज हो, तो कॉनकेव में कब बन, स्पेशल केस था कि नहीं कॉनकेव मिरर का, तो वो कहाँ था, बिटवीन पोल मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच रखते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। थर्ड, where should be object is placed in the front of convex lens, get the real view, real image of the size of object, ऑब्जेक्ट की साइज की कब बनती है, जब कहाँ, एट द प्रिंसिपल फोकस, एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता था, तो वहाँ अगर आप रख दोगे, बताया था मैंने, ठीक है, एक f2 और 2f2 यहाँ, तो जहाँ यहाँ रखोगे तो इसी के इक्वल यहाँ बन जाएगा। तो इक्वल साइज कब बनता है, इन्वर्टेड बनता है, तो कह रहा है इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बने, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ रखोगे। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। क्वेश्चन 4, स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ इज, स्फेरिकल मिरर और थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ -15, फाइंड द मिरर एंड लेंस आर लाइक टू बी, तो क्या होंगे बेटा, दोनों की सेम है, तो कौन सी कंडीशन होगी, तो हम कहेंगे बोथ क्या होंगे, कॉनकेव होंगे, ठीक है, बिकॉज कन्वेंशन से हमने पढ़ा था फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, तो चाहे मिरर ले लो, कॉनकेव ऐसा होता है इधर, तो इसके जो फोकल लेंथ इधर लेंगे तो माइनस लेते हैं, ऐसे ही लेंस में होती है फोकल लेंथ तो इधर लेते हैं, दोनों की सेम साइड है कि नहीं, तो नेगेटिव ही होगी। तो कह रहा है वाई फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर आर टेकन नेगेटिव, हैंस बोथ स्फेरिकल मिरर थिन स्फेरिकल लेंस कॉनकेव इज नेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, no matter how the stand from the mirror your image appear erect, the mirror is like B, जब इमेज होगी इरेक्ट, इमेज कैसे हो, अपेयर होती इरेक्ट दिखाई दे, तो क्या होगा, तो जब मैंने देखा होगा प्लेन या कॉन्वेक्स, प्लेन या कॉन्वेक्स में हो तो हम क्या बता सकते हैं, स्टैंड फ्रॉम द मिरर यू इमेज अपीयर इरेक्ट, मिरर होता है, देखा तुमने, यहाँ खड़े हो जाओ तुम उसके सामने तो आपकी इमेज दिखाई देगी, नो मैटर हाउ स्टैंड यू फ्रॉम मिरर, आगे पीछे कहाँ भी खड़े हो दिखाई जरूर देगा। ऐसे ही तुम कॉन्वेक्स में देखो, मेट्रो के पास जाते हो, कहीं दूर पर किसी भी कहीं पर भी खड़े हो तो आपको छोटा सा दिखाई देगा इसमें, राइट, तो ये बताया जा रहा, तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड हैव प्रेफर टू वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी, तो बताओ, ये तो तुम्हें बहुत आसान है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ा देंगे। कॉनकेव्स लेंस फोकल लेंथ 0.5, फोकल लेंथ ज़्यादा है, तुम पढ़ रहे हो, यहाँ किताब रखी है तुम्हारी और तुम यहाँ से पढ़ रहे हो, है ना, दूर से, तो दूर से पढ़ोगे तो नहीं, जितने अगर पास रखोगे 5 सेंटीमीटर के तो आप आराम से इसको पढ़ पाओगे क्या लिखा हुआ है, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉनकेव तो होगा ही नहीं, ठीक है, कॉनकेव तो होगा नहीं, अब कॉन्वेक्स दोनों बच रहे हैं, लेकिन दूर से या पास से, तो फोकल लेंथ जिसकी कम हो पढ़ पाना ईजी होगा, ठीक है, आप ही पढ़ लेना। अगला अगला आप देख सकते हैं, है ना, ये आप देख लीजिएगा, है ना, और नेम ऑफ द टाइप मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ कार होगा कॉनकेव होगा, ठीक है, साइड और रियर व्यू ऑफ मिरर, तो रियर व्यू का कॉन्वेक्स होगा। सोलर फर्नेस, सौर भट्टियों में किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव का, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन चाहे तो आप पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ें क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। अब कुछ केस जो है ना, जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा ये और बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये कह रहा है, देखो, कॉनकेव लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इवन वन हाफ ऑफ कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टू केसेस। एक कॉनकेव है, इसको ऊपर आधा ढक दो, चाहे ऊपर का या नीचे का, तो बेटा यहाँ रखोगे तो इमेज ये बनेगी। इसी कंडीशन में सेकंड देखो, सेकंड आपको दिख रहा होगा, नीचे ढक दिया तो भी बनेगी, तो इमेज तो दोनों में बनेगी, चाहे ढके हो या ना ढको, वह बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए गए, ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ है, हेयर 25 अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ दे दिया है, तो ऑब्जेक्ट हाइट दे दी, फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। तो देखो भी नहीं दिखाया हमें, तो हमने यू दे दिया, एच दे दिया, ए दे दिया, तो हम यू भी निकालेंगे पहले, तो भी कैसे निकालेंगे, लेंस फार्मूला से, लेंस फार्मूला यू करके भी निकल जाएगा, तो भी निकल जाएगा आपका, भी निकल जाएगा, तो फिर मैग्नीफिकेशन निकाल देना। मैग्नीफिकेशन तुम जानते हो, हाइट दोनों का यूज़ करके मैग्नीफिकेशन, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी माइनस भी अपन यू, मिरर है तो हो जाएगा। अब क्या दिखाना है, मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन है हाइट, कितना बढ़ा है कितना, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ रिलेशन जो है उसी का रख के आप सीधा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। ये कर लोगे, फिगर बना है देखो, ऐसी क्वेश्चन ये है, फोकल लेंथ दी है, इमेज डिस्टेंस दी है अकॉर्डिंग फार्मूला लेंस का यूज़ करके, तो वी दिया ये है, तो यू की डिस्टेंस निकाल लो, ऑब्जेक्ट कहाँ कितनी दूरी पर रखा गया है वो मिल जाएगा, और रेड डॉट डायग्राम भी बनाना है, बना देंगे, तो यू की वैल्यू -3 आ गई, ठीक है। और माइनस है तो इतना क्लियर हो रहा है, ये कैसा होगा, लेंस कैसा होगा, कॉनकेव होगा, क्योंकि ये माइनस तो प्लस माइनस में है, तो इधर ही और इधर बनता है, तो वो कौन सा होता है, कौन वेक्स होता है, ठीक, इधर बन रहा है, तो फिर अपन कहेंगे ये कौन वेक्स है, और कॉनकेव है, बस हो जाएगा, 12 वाला है, बस सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ आंसर होता जाएगा, राइट। ये कर लेना, नहीं तो अगर नहीं हो, दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं करवा दूँगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि सबकी हेल्प हो पाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो, जिसको पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करें, और सारी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।